Hello everyone, welcome to channel. Let's start cockroach. Cockroaches are brown or black bodied animals that are included in class Insecta of phylum Arthropoda. Bright yellow, red and green color cockroaches have also been reported in tropic regions. Their size ranges from 1 by 4 inches to 3 inches, have long antennae, legs and flat extension of the upper body wall that conceals head. Let's start morphology. Adults of the common species of cockroach, Periplaneta americana, are about 34 to 53 millimeter long with wings that extended beyond the tip of the abdomen in males. The body of the cockroach is segmented and divisible in three regions: head, thorax, and abdomen. The entire body is covered by a hard, chitinous exoskeleton, brown in color. In each segment, exoskeleton has hardened plates called sclerites, tergites dorsally, and sternites ventrally, that are joined to each other by a thin and flexible articular membrane, arthroidal membrane. Let's make notes. जो एडल्ट कॉकरोच होते हैं, पेरी प्लानेटा अमेरिकाना, इनका नाम है। इनके पास लॉन्ग विंग्स होती हैं जो कि इनके एब्डोमेन के नीचे तक जाती हैं। एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द abdomen in males. इनकी जो बॉडी होती है वो डिविजिबल है इनटू हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। जो बॉडी होती है वो इनकी कवर होती है बाय अ हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, जो कि कलर में ब्राउन होता है। एक्सोस्केलेटन के हर सेगमेंट में हार्ड प्लेट्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग स्क्लेराइट्स कहते हैं। टेरगाइट्स कहेंगे जब डॉर्सली देखेंगे, और स्टेरनाइट्स कहेंगे जब वेंट्रली कहेंगे, वेंट्रली देखेंगे। और ये जो हार्ड प्लेट्स होते हैं ये एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, मतलब जॉइंट होते हैं बाय अ थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से।
जिसको हम लोग कहते हैं अर्थ रोडाइल मेम्ब्रेन। Head is triangular in shape and lies anteriorly at right angles to the longitudinal body axis. It is formed by the fusion of six segments and show great mobility in all directions due to flexible neck. Head, जो हेड है वो शेप में ट्रायंगुलर होता है और lies anteriorly at right angle 90 degree to the longitudinal body axis. और फॉर्म्ड होता है हेड by the fusion of 6 segments और ये इनका हेड हर डायरेक्शन में देख सकते हैं क्योंकि इनके पास फ्लेक्सिबल नेक होते हैं। हेड कैप्सूल bears a pair of compound eyes. A pair of thread-like antennae arise from membranous sockets lying in front of the eyes. Antennae have sensory receptors that help in monitoring the environment. Anterior end of the head bears appendages forming biting and chewing type of the mouth part. इनके पास कंपाउंड आईज होती हैं पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना होता है arise from membranous sockets lying in front of eyes. Anterior end of the head bears appendages forming biting and chewing type of mouth part. Forming biting and chewing type of a mouth part. Mouth parts consisting of a labrum upper lip, pair of mandibles, a pair of maxilla, a labium lower part, a median flexible lobe acting as tongue, hypopharynx lies within the cavity enclosed by the mouth parts. आते हैं माउथ पार्ट्स पे। इनके पास लेब्रम है, उसको हम लोग कहेंगे अपर लिप। A pair of
mandibles, a pair of maxilla, a labium. ये आएगा लोअर पार्ट. और इनके पास मीडियन फ्लेक्सिबल लोब है. ये ऐड करता है एज अ टंग, हाइपोथेरैक्स, lies within the cavity enclosed by the mouth parts. जो थोरैक्स है उसके 3 पार्ट्स हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स. Head is connected with thorax by a short extension of the prothorax known as the neck. अब कह रहे हैं thorax, prothorax, mesothorax और मेटाथोरैक्स. जो हेड है वो कनेक्टेड है थोरैक्स से बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स जिसको कहेंगे हम लोग नेक. अब आगे आते हैं. ईच thoracic segment bears a pair of walking legs. First pair of wings arise from mesothorax and the second pair from metathorax. 4 wings, mesothoracic, called tegmina, are opaque, dark, and leathery, cover the hind wings when at rest. कह रहे हैं each thoracic segment bears a pair of walking legs जो पहला पेयर है
वो अराइज होता है फ्रॉम मेसोथोरैक्स, जो सेकंड पेयर है वो अराइज होता है फ्रॉम मेटाथोरैक्स, फोर विंग मेसोथोरैसिक, इसको हम लोग कहते हैं टेगमिना। ये ओपेक डार्क कलर का होता है, लीदरी होता है और कवर करता है हाइंड विंग्स को जब ये रेस्ट पे होते हैं। जो हाइंड विंग्स होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं और यूज्ड होते हैं इन फ्लाइट। जो एब्डोमेन होता है मेल और फीमेल में वो कंसिस्ट करता है 10 सेगमेंट्स का। फीमेल में जो सेवेंथ स्टर्नम होता है वो बोट शेप्ड होता है और एट्थ और नाइन्थ के साथ स्टर्नम एक ब्रूड या जेनाइटल पाउच बनाता है जिसका इंटीरियर पार्ट कंटेन करता है फीमेल के गोनोपोर, स्पर्माथिकल पोर और कोलैटरल ग्लैंड्स। In males, genital pore or chamber lies at the hind end of the abdomen, bounded dorsally by ninth and 10th terga and ventrally by the ninth sternum. Abdomen दोनों मेल और फीमेल में कंसिस्ट करता है 10 सेगमेंट्स। फीमेल में सेवेंथ स्टर्नम बोट शेप का होता है और एट्थ sternum with seventh sternum with eighth and ninth फॉर्म करता है ब्रूड, जिसको हम लोग कह सकते हैं जिनाइटल पाउच। जिसका जो एंटीरियर पार्ट कंटेन करता है गोनोपोर्स, स्पर्माथिकल और कोलाटरल ग्लैंड। मेल्स में
genital pouch, या फिर कह लेते हैं चैम्बर, लाई करता है एट हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन, bounded dorsally by ninth or 10th terga and ventrally by ninth sternum. It contains dorsal anus, ventral male genital pore and gonapophysis. बियर करता है डोर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल कोर और गोनापोफाइसिस. Male bear a pair of short thread-like and anal style which are absent in females. In both sexes, stem segment bear a pair of jointed filamentous structure called anal cerci. मेल में pair of short thread-like anal style होती है जो कि फीमेल्स में नहीं होती है. और दोनों ही सेक्सेस में बोथ मेल और फीमेल में 10वें सेगमेंट पे पेयर ऑफ jointed फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं एनाल सर्काई. राइट, प्लीज डायग्राम याद कर लेना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब आते हैं एनाटॉमी पे. लर्न डायग्राम and its naming as well.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं एनाटॉमी में। Alimentary canal present in the body cavity is divided into three regions: foregut, midgut, hindgut. Mouth opens into a short tubular pharynx leading to narrow tubular passage called esophagus. This in turn open into sac-like structure called crop used for storing food. Crop is followed by gizzard or proventriculus. It has an outer layer of thick circular muscle and thick inner cuticle forming six highly chitinous plates called teeth. अब कह रहे जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो प्रेजेंट होता है बॉडी कैविटी में। इसके थ्री रीजन्स होते हैं: फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। जो माउथ होता है वो खुलता है एक शॉर्ट ट्यूब्यूलर फेरिंग्स में जो कि लीड करता है टू अ नैरो ट्यूबुलर पैसेज जिसको हम लोग कहें ईसोफेगस। और ये खुलता है इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉप। और ये क्रॉप जो होता है वो हेल्प करता है इन स्टोरिंग फूड। जो क्रॉप होता है वो फॉलो करता है बाय गिजार्ड या फिर कहते हैं हम लोग प्रो वेंट्रिकुलर। इसकी जो आउटर लेयर होती है वो होती है थिक सर्कुलर मसल की और थिक इनर क्यूटिकल की जो कि फॉर्म करते हैं सिक्स हाईली
काइटिनस प्लेट को, जिसको हम लोग कहते हैं टीथ। जो गिजार्ड होता है वो हेल्प करता है ग्राइंडिंग में। Entire foregut is lined by cuticle, a ring of 6 to 8 blind tubules called hepatic or gastric cica is present at the junction of foregut and midgut, which secrete digestive juices. फिर कह रहे हैं जो एंटायर फोरगट होता है वो लाइंड होता है बाय क्यूटिकल, रिंग होती है जो जिसमें 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हिपैटिक या फिर गैस्ट्रिक टीका। वो प्रेजेंट होता है एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट और ये सेक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूसेस। At the junction of midgut and hindgut is present another ring of 100 to 150 yellow-colored thin filamentous Malpighian tubule। से कह रहे हैं कि मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे दूसरी रिंग पाई जाती है जिसमें 100 से 150 रिंग्स होते हैं। ये येलो कलर्ड होते हैं। थिन फिलामेंटस, इनको हम लोग कहे हैं माल पिगियन ट्यूब्यूल। They help in removal of excretory products from hemolymph और ये हेल्प करता है टू रिमूव excretory product from hemolymph। हाइंडगट ब्रॉडर होता है देन द मिडगट और डिफरेंशिएटेड होता है इनटू इलियम, कोलम और रेक्टम। जो रेक्टम होता है वो ओपन होता है थ्रू एनस। जो हाइंडगट होता है ये ब्रॉडर होता है देन द मिडगट
और ये डिफ्रेंशिएट होता है इनटू इलियम, कोलन और रेक्टम। अब आते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस। ये ओपन टाइप होते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप होते हैं। ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड होते हैं एंड ओपन इनटू स्पेस, होमोकोइल। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ये ओपन टाइप होते हैं और ये खुलते हैं इनटू अ स्पेस, जिसको हम लोग कहते हैं हीमोकोइल। Visceral organs located in the hemocoel are bathed in blood. Hemolymph. Hemolymph is composed of colorless plasma, hemocytes. फिर कह रहे हैं जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं हीमोकोइल में, और बाध्ड होते हैं इनटू ब्लड, जिसको हम लोग कहते हैं हीमोलिम्फ। जो हीमोलिम्फ होता है ये कलरलेस प्लाज्मा होता है और हीमोसाइट्स होते हैं। Heart of the cockroach consists of elongated muscular tube line along mid-dorsal line of thorax and abdomen. It is differentiated into funnel-shaped chambers. It is differentiated into funnel-shaped chambers with ostia on either side. Blood from sinuses enter heart through ostia and is pumped anteriorly through sinuses again. अब कह रहे हैं जो हार्ट होता है कॉकरोच का वो इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि लाई करता है अलोंग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स and abdomen. It is differentiated into funnel shaped chamber
with ostia on either side. Blood from sinuses enter heart, enter heart through ostia and is pumped anteriorly to sinuses again. अब आते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम पे. Respiratory system consists of network of trachea that brings through 10 pairs of small holes called spiracles present on the lateral side of the body. Thin branching tube, tracheal tube subdivided into tracheoles, carry oxygen from air to all the parts. अब कह रहे हैं जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके पास नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया होते हैं जो कि ओपन होता है थ्रू 10 पेयर और स्मॉल होल जिसको हम लोग कहते हैं स्पाइरिकल्स जो कि प्रेजेंट होता है ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी. जो थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स. Tracheal tubes subdivided into tracheoles carry oxygen from the air to all the parts. फिर कह रहे हैं ओपनिंग ऑफ द स्पाइरिकल्स इज रेगुलेटेड by the sphincter. Exchanges of gas take place at the tracheoles by diffusion. फिर कह रहे हैं स्पाइरिकल्स की ओपनिंग रेगुलेट होती है बाय स्फिंक्टर
or exchange of gases take place at the tracheoles by diffusion. फिर excretion is performed by Marfan tubule. Each tubule is lined by glandular and ciliated cell. They absorb nitrogenous waste products and convert them into uric acid, which is excreted out through hindgut. This insect is urealytic, uricotilic. In addition, fat body, nephrocytes, and uricose gland help in excretion. Excretion होता है by Malpighian tubules. Each tubules is lined by glandular and ciliated cell. Absorb nitrogen based products. Cockroaches absorb nitrogenous waste products और कन्वर्ट करता है इनटू यूरिक एसिड जो कि एक्सक्रीट होता है थ्रू फाइन गट. कॉकरोचेस यूरिकोलेटिक यूरिकोटेलिक होते हैं और फैट बॉडी नेफ्रोसाइट और यूरिकोस ग्लैंड हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में. नर्वस सिस्टम का अप्रोच का कंसिस्ट करता है बाय सीरीज ऑफ फ्यूज्ड segmentally arranged ganglia joined by pair of longitudinal connectives on the ventral side. Three ganglia rise in the thorax, six in the abdomen. Nervous system of cockroach is spread throughout the body. The head holds a bit of nervous system, while the rest is situated along the ventral belly side part of the body. अब इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ फ्यूज्ड series of fused segmentally arranged ganglia
जो कि जॉइन होता है बाय द पेयर longitudinal connectives on the ventral side. तीन गैंग्लिया पाए जाते हैं थोरैक्स में। 6 गैंग्लिया पाए जाते हैं एब्डोमेन में। और जो मेन नर्वस सिस्टम होता है या फिर कह लेंगे मेजॉरिटी, वो होती है ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, स्पेशली बेली साइड। हेड रीजन में जो ब्रेन होता है वो रिप्रेजेंटेड होता है बाय सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन which supply nerves to antenna and compound eyes. Sense organs are antenna, eyes, maxillary palps, labial palps, anal, cerci, etc. Compound eye is situated at the dorsal surface of the head. Each eye consists of about 2000 hexagonal ommatidia. With the help of several ommatidia, cockroach can receive several images of the object. This kind of vision is known as mosaic vision, with more sensitive but less resolution, being common during night, hence called nocturnal vision. अब कह रहे हैं हेड रीजन में ब्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन जो कि सप्लाई करता है नर्व टू एंटीना आईज जो कंपाउंड आईज होते हैं सिचुएटेड होते हैं at the dorsal surface of the head और ईच आई कंसिस्ट करता है लगभग 2000 हेक्सागोनल
होमाटीडिया को ढेर सारे होमाटीडिया के हेल्प से कॉकरोच अब मतलब कॉकरोच के पास एबिलिटी होती है एक ही ऑब्जेक्ट के ढेर सारे इमेजेस देखने की एबिलिटी होती है, काफी अच्छा। और इस काइंड ऑफ विजन को हम लोग कहते हैं मोज़ेक विजन, मतलब लेस सेंसिटिव एंड मोर रेजोल्यूशन। और ये कॉमन होता है ड्यूरिंग नाइट और इसको हम लोग ये कह सकते हैं नॉक्टूरल विजन, नॉक्टूरल विजन। अब करते हैं बात इनके सेंस ऑर्गन्स की। सेंस ऑर्गन्स में आएंगे एंटीना, आई, मैक्सिलरी पार्ट्स, लेबियल पैल्प्स, एनाल, परकाय। जो कॉकरोचेस होते हैं ये डायोशियस होते हैं और वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ टेस्टिस, वन लाइन ऑन ईच लेटरल साइड इन द फोर्थ सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट। From each testis arise a thin vasa difference which opens into ejaculatory duct through seminal vesicle. Ejaculatory duct opens into male gonopore situated ventrals to anus. A characteristic mushroom-shaped gland is present in sixth to seventh abdominal segment, which functions as an accessory reproductive gland. जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है वो रिप्रेजेंट होता है बाय मेल गोनापोफाइसिस या फिर कह सकते हैं फेलोमेयर। ये कार्टिनियस असिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है जो कि सराउंड होता है बाय द मेल गोनोपोर। जो स्पर्म होते हैं वो स्टोर होते हैं सेमिनल वेसल में और ग्लूड टुगेदर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बंडल, जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोफोर, जो कि एक जिस डिस्चार्ज होते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ठीक है, अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पे। मेल रिप्रोडक्टिव देखो ये वेल डेवलप्ड होते हैं और इनके पास पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं
जो कि लोकेटेड होता है फोर्थ टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट्स में। ईस्ट से अराइज होता है, अराइज करता है, टेस्टिस अराइज करता है थिन वासा डिफरेंस को, जो कि ओपन होता है इजैकुलेटरी डक्ट में, थ्रू सेमिनल वेसिकल, जो इजैकुलेटरी डक्ट होता है वो ओपन होता है मेल गोनोपोर में, सिचुएटेड होता है वेंट्रल टू एनस, और इनके पास एक मशरूम शेप्ड ग्लैंड होता है जो कि प्रेजेंट होता है सिक्स से सेवेंथ एब्डोमिनल सेगमेंट में, जो कि फंक्शन करता है एज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। एक्सटर्नल जेनिया रिप्रेजेंट कर होते हैं बाय मेल गोनेपोफाइसिस, या फिर हम लोग इनको कहते हैं टेलोमेयर। ये काइटिनियस असिमेट्रिक स्ट्रक्चर होते हैं क्योंकि सराउंडिंग सराउंडिंग सराउंड करते हैं मेल गोनोपोर को। ठीक है, जो स्पर्म्स होते हैं जो स्टोर होते हैं सेमिनल वेसिकल में, और ये ग्लूड होते हैं टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल।
इसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोफोर। वे डिस्चार्ज होते हैं ड्यूरिंग पॉपुलेशन। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, उनके पास दो लार्ज ओवरीज होते हैं जो कि लिटरली पाए जाते हैं सेकेंड और सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में। ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 ओवरियन ट्यूब्यूल्स, या फिर कहते हैं हम लोग ओवरियोल्स। इनके पास चेन होता है डेवलपिंग ओवा का। जो ओविडक्ट्स होते हैं ईच ओवरी के यूनाइट करते हैं सिंगल मीडियन ओविडक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं विजाइना, जो कि ओपन होता है इनटू जेनाइटल चैम्बर। पेयर ऑफ स्पर्माथिका होता है, वो रिप्रेजेंट होता है सिक्स्थ सेगमेंट में, जो कि ओपन होता है जेनाइटल चैम्बर में। Sperm are transferred to spermatophore. They fertilize eggs. Their fertilized eggs are encased in capsule, जिसको हम लोग कहते हैं ootheca। जो ootheca होते हैं वो डार्क रेडिश से लेकर के ब्राउनिश ब्राउन कलर के होते हैं कैप्सूल फॉर्म में, एंड दे आर ड्रॉप्ड और glued to a suitable surface, usually in a crack or crevice of high relative humidity near food source। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, इनके पास दो लार्ज ओवरीज होते हैं, और ये लेटरली पाए जाते हैं सेकेंड सिक्स्थ सेगमेंट एब्डोमिनल सेगमेंट के। जो ईच ओवरी जो ओवरी होता है दो होते हैं, और दोनों बनते हैं ग्रुप बाय द ग्रुप ऑफ 8 ओवरियन ट्यूब्यूल से। जिसको हम लोग कहते हैं ओवरियोल। ये कंटेन करता है चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। जो ओविडक्ट होता है ईच ओवरी का, वो यूनाइट करता है इनटू सिंगल मीडियन ओविडक्ट। इसको हम लोग वेजाइना भी कहते हैं। ये ओपन होता है जेनाइटल चैम्बर में। पेयर ऑफ स्पर्माथिका रिप्रेजेंट होता है सिक्स्थ सेगमेंट से, और ये ओपन होता है इनटू जेनाइटल चैम्बर। जो ootheca होता है वो डार्क रेडिश से लेकर के
ब्लैकिश ब्राउन तक होता है, ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होते हैं। जो फीमेल होते हैं 9 से लेकर 10 तक ऊतक प्रोड्यूस करते हैं, जिन और हर ऊतक में 14 से 16 एग्स होते हैं। 9 से 10 ऊतक प्रोड्यूस करते हैं और ऊतक ईच जब एक एक ऊतक में 14 से 16 एग्स होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ P. americana is porometabolous, meaning there is a development through nymphal stage. Nymphal looks very much like adult. Nymph grows by mouthing about 13 times to reach up to adult form. Next to last nymphal stage has wing pads, but only adult cockroach have wings. फिर कह रहे हैं पी अमेरिकाना का डेवलपमेंट मेटाबोलस होता है, मतलब कि ये डेवलप्ड होते हैं थ्रू निम्फल स्टेज। ये बहुत सिमिलर होते हैं एडल्ट फॉर्म के, और जो निम्फल होते हैं वो ग्रो होते हैं बाय माउल्टिंग about 13 times to reach adult form. जो नेक्स्ट से लास्ट लिम्फल होता है इनके पास विंग पैड्स होते हैं और रियल विंग्स केवल एडल्ट के पास होते हैं। That's it for the chapter. I hope you liked it. Thanks for watching.